Now we move on to the first technique, UV visible spectroscopy. As we have already discussed the basic terminologies of spectroscopy, I have told you earlier about the spectroscopy, the definition of spectroscopy and the basic terminologies regarding spectroscopy. We have studied spectroscopy, frequency, waves, wave number, electromagnetic spectrum, and some other basic terms I have told you earlier in the class. So now we will go through this technique. In this technique we will study three major areas. First one, its theory, then we will move on to the instrumentation, and in the last we will study applications. So first we move on to the contents. First content is that history. First we will go through history and introduction to spectroscopy, then move on to the basic principles, laws of absorption, UV visible spectroscopy definition, instrumentation and application. So this is the history of spectroscopy. You will go through this history, and the definition of spectroscopy, I have already told you that spectroscopy is the branch of science which deals with the interaction of electromagnetic radiations with the matter. And there two types are given. If spectroscopy is related to atoms, then it is called as atomic spectroscopy, and if spectroscopy is related to the molecules, then it is called as molecular spectroscopy. And as we have the knowledge about the light, nature of light, that light has dual nature. It can travel through waves or in the form of particles or photons, corpuscular, and this is the speed of light, 3 into 10 raised 8 meter per second. Next we move on to the laws of absorption. We have discussed earlier about these laws one by one, Boger-Lambert law and Bayer law, and by combining these two laws we get Boger-Lambert law. This law states that the amount of light absorbed is proportional to the thickness of the absorbing material and is independent of the intensity of incident light. Now we go through the definition of UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy is also known as electronic spectroscopy, in which the amount of light absorbed at each wavelength of UV and visible regions of electromagnetic spectrum is measured. The absorption of electromagnetic radiations by the molecules lead to the मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन. लेकिन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं आप लोगों को इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और इसके बारे में भी आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने क्या कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है. स्पेक्ट्रोस्कोपी ये है कि जब भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगी तो हमारे पास जो भी ग्राफ आएगा या जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा उससे फिर हम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है एनालाइज करते हैं. ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस हम कर सकते हैं कि हम उसकी अमाउंट भी डिटरमिन कर सकते हैं, और दूसरा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर या इस मैटर के अंदर क्या मटेरियल मौजूद है. ठीक है, उसकी हम स्ट्रक्चर को भी हम बता सकते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स. यानी हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी वो दोनों को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जो रेडिएशंस यूज़ करेंगे, इसमें बेसिकली ये तमाम टेक्निक्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशंस यूज़ होंगी? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेडिएशंस यूज़ होंगी. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी. यानी गामा रेडिएशंस आप देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी सिर्फ मैक्सिमम होगी और रेडियो वेव्स इनकी एनर्जी मिनिमम है. तो अगर इनको सिस्टमैटिकली हमने अरेंज कर दिया तो इसको हम कहते हैं ये स्पेक्ट्रम हमारे पास बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. डिफरेंट रेडिएशंस को अगर हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो फर्स्ट वन हेयर, मैक्सिमम एनर्जी जो रख रही हैं रेडिएशंस वो हैं गामा रेडिएशंस, देन एक्सरे रेडिएशंस, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव
एंड रेडियो वेव्स, और हम यूवी के अंदर हमने अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों रेडिएशन यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें यहाँ वेवलेंथ शो की गई है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। नेक्स्ट, दिस इज द रेंज। इसमें अल्ट्रावायलेट और ये विजिबल रीजन, दोनों रीजन शो किए गए हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 200 to 400 नैनोमीटर के करीब फॉल करता है, जबकि विजिबल रीजन जो है वो 400 to 800 नैनोमीटर के दरमियान आता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स हैं जिनकी डिफरेंट रेंजेस दी गई हैं, वेवलेंथ दी गई हैं जिनकी ये रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द on this slide. In this slide you can see the different characteristics of electromagnetic radiations. These are the spectral regions and these are their wavelengths, frequency, wave number and energy. So here we can see the cosmic rays, these have the maximum energy. लेकिन उस लिस्ट में कॉस्मिक रेज नहीं दी गई थी, लेकिन इस लिस्ट में कॉस्मिक रेज भी ऐड कर दी गई है, तो ये भी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। कॉस्मिक रेज की मैक्सिमम एनर्जी है और उसके बाद रेडियो वेव्स की मिनिमम एनर्जी है। इसी तरह ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी